Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for MTCAT, and today I am going to discuss the phases of photosynthesis or the reactions of photosynthesis. In today's lecture, we are going to discuss the light dependent reactions, the cyclic and non-cyclic phosphorylation. So let's move on. Dear students, the photosystems. So we have got two photosystems. Photosystem 1 and photosystem 2. The photosystem 1, its energy level is 700, while that of photosystem 2 is 680. सो बेसिकली ये जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल होती है, हमने क्लोरोफिल की टाइप्स पढ़ी. क्लोरोफिल ए की जो रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल है, इट हैज़ गॉट 4 टाइप्स, 670, 680, 690 एंड 700. तो ये उसी के बिहाफ के ऊपर है. तो ये चूँकि जो फोटो सिस्टम के अंदर जो मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो इन्वॉल्व्ड, मतलब दैट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शंस, दैट इज द क्लोरोफिल है. सो उसी के बिहाफ के ऊपर सो फोटो सिस्टम 1 एंड 2. और ये 1 एंड 2 देखा जाए तो इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है, इसका एनर्जी लेवल थोड़ा कम है, और लेकिन इसके बावजूद हम इसको 1 और 2 इस तरह से लिख रहे हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी. मीन्स कि फोटो सिस्टम 1 इट वाज डिस्कवर्ड अर्लियर. ये पहले डिस्कवर हुई तो इसलिए इसका नाम रख दिया फोटो सिस्टम 1, एंड जो बाद में डिस्कवर हुई उसका नाम रख दिया फोटो सिस्टम 2. सो और इसके बीच में कोई लॉजिक नहीं है 1 और 2 लिखने में. क्लियर? सो एनर्जी लेवल्स आपके सामने मौजूद हैं. सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स, यहाँ से प्रोसेस कौन सा चलना है इन फोटो सिस्टम्स के तहत. द फर्स्ट फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस, दैट इज लाइट रिएक्शन और द लाइट डिपेंडेंट reaction, simply known as light reactions. जिसमें the solar energy is converted into the chemical energy. So in this process we are going to synthesize ATP and NADPH. So here is a term phosphorylation. Phosphorylation, dear students, this is basically the transfer of phosphate group to an organic molecule. It is known as the phosphorylation. और यहाँ पर phosphorylation कहाँ पर हो रही है? The ADP plus inorganic phosphate. So ADP and inorganic phosphate, it will be converted into ATP. Clear? So this process is known as the phosphorylation, the formation of ATP, the adenosine triphosphate. Clear? During light reactions is called, it is also called photophosphorylation. है तो phosphorylation, चूंकि लाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो इसलिए हम इसे कहेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन. अब डियर स्टूडेंट्स, फोटोफॉस्फोरिलेशन दो तरीके से होती है. इट इज डन थ्रू बाय टू वेज, आइदर बाय द नॉन साइक्लिक और साइक्लिक phosphorylation.
तो दो तरीके हैं, एक साइक्लिक और दूसरा नॉन साइक्लिक. साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, इट इन्वॉल्व्स photosystem 2 plus photosystem 1, while the cyclic phosphorylation, it only involves only photosystem 1. It is predominant while the cyclic phosphorylation, it occurs during ATP stress, मतलब जब ATP का लेवल कम हो जाएगा. So let's move on. So जो प्रीडोमिनेंट टाइप है, मतलब नॉर्मली प्लांट्स के अंदर ATP कैसे बनेगी या फॉस्फोरेशन कैसे होगी, दैट विल बी द नॉन साइक्लिक फॉस्फोरेशन. सो लेट्स मूव ऑन. सो देखते हैं कि नॉन साइक्लिक फॉस्फोरेशन है क्या. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट. हियर इज P680. The photosystem 2 is there. Clear? Photosystem 2. And here is the electron acceptor, the primary electron acceptor of this photosystem. The primary electron acceptor, ये accept करेगा, ठीक है. और after accepting, it transfers the electrons to the nearby electron transport chain, a carrier of proteins. That is, number one is plastoquinone. Then there is the cytochrome complex. Cytochrome complex. So as I told you that cytochrome complex, it is a complex of two cytochromes. यहाँ पर मौजूद है एक तो cytochrome B6 plus it has cytochrome F. तो ये दो साइटोक्रोम्स हैं यहाँ पर, इसलिए इसको कहते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स. Then there is, it passes on or transfers the electrons to another, the copper containing protein, which is known as plastocyanin. It's plastocyanin. And the plastocyanin, it passes on to the photosystem 1. P700 is there. This is photosystem 1. Clear? अब इस फोटोसिस्टम का अपना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ज़रा गौर कीजिएगा प्लीज़, बहुत टेक्निकल पॉइंट, इन दोनों के एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस देख सकते हैं. जो फोटोसिस्टम, दिस इज फोटोसिस्टम 2
ये थोड़ा सा नीचे है, और दिस इज फोटो सिस्टम 1, इसका ये थोड़ा सा ऊपर बनाएगा। टेक्निकली आपने इसी तरह से इसको मेंशन किया, ये ऊपर होने का मतलब है क्योंकि इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है, ठीक है। सो दैट इज द रीज़न। So this is the primary electron acceptor of this photosystem 1. It will pass on its electrons to ferredoxin, the iron containing protein, and the ferredoxin will pass on to another protein, that is NADP reductase. NADP reductase means it is an enzyme. Clear? So ये तो हमने सारे इसकी ड्रॉ कर ली। The pathway involved in non-cyclic phosphorylation. So here we go. तो जी सूरज की रोशनी पड़ रही है यहाँ पर, फिर यहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है अल्टीमेटली टू द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, और इसी दौरान यहाँ पर द वाटर मॉलिक्यूल H2O, it is splitted into 2 hydrogen atoms which will lose their electrons and become hydrogen ions plus 2 electrons and half O2। ये हाफ O2 पहले से मौजूद हाफ O2 के साथ मिलके 1 O2 बनाएगी, एंड इट इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट इज ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, जिसमें होता है, ठीक है, हमारे फोटोसिंथेसिस में जो बाय प्रोडक्ट बनता है ऑन द प्रोडक्ट साइड। सो ये जो ऑक्सीजन हाफ O2, और पहले से इससे पहले वाले प्रोसेस से जो हाफ O2 थी वो मिलकर O2 बनाएगी, एंड इट इज लाइब्रेटेड, मीन्स हाफ O2 plus half O2 is equal to 1 O2, and this 1 O2 is liberated as oxygen gas, ठीक है। और ये चूंकि प्रोसेस, अच्छा यहाँ पर एंजाइम के हवाले से याद रखिएगा, द एंजाइम इज दिस फोटो सिस्टम 2। ये फोटो सिस्टम 2 यहाँ पर एंजाइम के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, और उसको हम डिनोट करते हैं एज Z। इस एंजाइम को हम नाम देते हैं Z का। इसकी मौजूदगी में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इट इज बीइंग डन, सो दैट इज द रीजन दिस प्रोसेस, दिस स्टेप इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस, फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस मीन टू स्प्लिट। तो ये लाइट का स्प्लिट करना नहीं है, बल्कि लाइट की मौजूदगी में वाटर मॉलिक्यूल्स का स्प्लिट करना, दैट इज फोटोलाइसिस, ठीक है। तो चलिए अब मूव करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पर भी लाइट पड़ रही है, इसके ऊपर इसने पास की इसको, इसने पास की इसको, एंड अल्टीमेटली टू दिस वन। सो sorry, so this is photosystem 2, photosystem 1, and here is the level of energy of electrons, the bar. So this is the bar which is showing the energy level of electrons, high and low. This is energy level of electrons. Clear? So this is going to mention. तो डियर स्टूडेंट्स, सूरज की रोशनी पड़ती है फोटो सिस्टम 2 पे पहले, ठीक है। लाइट मतलब कि आई एम गोइंग जस्ट टू समराइज दिस। सो इन द फर्स्ट स्टेप द sunlight it is gathered by the antenna complex of photosystem 2, which absorbs the wavelength of reaction center chlorophyll A 680। तो यहाँ पर ये अल्टीमेटली कैरोटीनॉइड्स टू द क्लोरोफिल बी, और क्लोरोफिल बी किसको पास करेंगे, टू द क्लोरोफिल ए ऑफ द रिएक्शन सेंटर। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पर मैं आपकी सहूलत के लिए बता रहा हूँ, दो फोटॉन्स, ठीक है, 2 photons विल स्ट्राइक, और उससे क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, क्योंकि हमारा पाथवे वो 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड है, तो हम यहाँ पे 2 फोटॉन्स ये एक्साइट करेंगे क्लोरोफिल ए ऑफ द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 2, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को।
तो यहाँ से जब ये एक्साइट होगी, लाइट एनर्जी को एक्सेप्ट करेगी, इसका एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा इसके क्लोरोफिल ए का, और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से मूव किए तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, 2 होल्स क्रिएट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट हो जाएंगे। इन 2 इलेक्ट्रॉन होल्स को पूरा करने के लिए यहाँ से देखिएगा वाटर को स्प्लिट किया गया। वाटर स्प्लिट करता है तो उससे 2 इलेक्ट्रॉन चीज़ों से निकले, 2 हाइड्रोजन एटम बने थे, एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी लॉस्ट एंड these electrons will move on to this position of the chlorophyll A, ताकि इसका जो गैप है वो पूरा किया जाए, इलेक्ट्रॉन होल पूरा किया जा सके, ताकि रिएक्शन सेंटर की जो क्लोरोफिल है अब दोबारा से लाइट को एक्सेप्ट कर सके। क्लियर? इस तरह से इसके लिए पॉसिबल नहीं होगा अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स पहले से मिसिंग हो और ये मतलब कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में हो। ठीक है, सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसके रिमूव निकलेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, मतलब कि अब ये हो गई ऑक्सीडाइज्ड, और दोबारा से इसको रिड्यूस किसने किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ने, जो कहाँ से आए, फोटोलाइसिस से। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसी के जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था उसने इसको एक्सेप्ट किया और इसको पास किया टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ऑल दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को पास करेगा टू द फर्स्ट protein of the electron transport chain, that is known as plastoquinone. Plastoquinone. Clear? और it is abbreviated as PQ. ये basically isoprenoid derivative है, याद रखिएगा, it is isoprenoid derivative. और ये नॉन हीम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, नॉन हीम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको पास किए, मतलब ये कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए ये क्या हो गया, रिड्यूस। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे पास किए जाएंगे टू द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को दिए जाएंगे। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में 2 प्रोटीन्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ याद रखिएगा, साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F। इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 साइटोक्रोम्स। क्लियर? ये साइटोक्रोम्स के दीज आर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स, याद रखिएगा, ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं और इसमें हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है। इन साइटोक्रोम्स का दे हैव हीम एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, इनका प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्लियर? और फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स से होते हुए कहाँ मूव करेंगे, टूवर्ड्स द अनदर प्रोटीन दैट इज नोन एज PC, और इट इज नोन एज द प्लास्टोसायानिन। इट इज प्लास्टोसायानिन। इट इज अ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, CU लिख रहा हूं, ठीक है, इसका एब्रिविएशन लिख रहा हूं, इट्स कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। MCQ के लिए मार्क कर लीजिए इसको, ठीक है। यानी कि इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो कॉपर है, इस प्रोटीन का प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा है, कॉपर है। इसको भी MCQ के लिए मार्क कर लीजिए प्लीज। तो यहां तक पहुंच गया। जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से देखिए हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूव कर रहे हैं तो यहां से एनर्जी डिराइव की जाएगी। हियर द एनर्जी during the flow of electron, chemiosmotic synthesis of ATP is done. So during electron flow there is chemiosmotic synthesis of ATP। तो पहला मकसद तो पूरा हो गया, ATP। डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत अहम पॉइंट याद रखिएगा साइटोक्रोम के हवाले से। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, एक तो ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है। तो यहां पर मैं लैदा से लिखने लगा हूं इसके हवाले से, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है
plus it also acts as the proton. It also acts as proton pump. इस बात को याद रखिएगा, फिर ये मैं आपसे केमियोस्मोसिस के प्रोसेस में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ये प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन आयन को। तो प्रोटॉन पंप यानी हाइड्रोजन आयंस को पंप करने के लिए इस्तेमाल होगा फ्रॉम स्ट्रोमा टू द थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस, और प्लस ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, ये इसको सेंसिटाइज करेंगे और ये स्टार्ट कर देगा एंड स्टार्ट्स एक्टिंग एज अ प्रोटॉन पंप। और ये अंदर से मतलब कि स्ट्रोमा से, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयंस को पंप करेगा, प्रोटॉन को पंप करेगा टू द थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस, या जिसको हम कहते हैं लुमेन। ठीक है, ये आगे डिटेल आएगी केमियोस्मोसिस में। फिर ये दो इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव कर जाते हैं टू द प्लास्टोसाइरिन। प्लास्टोसाइरिन ऑक्सीडाइज, ये रिड्यूस हो गई। ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, कॉपर इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है, हीम इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है, याद रखिएगा। ठीक है, नाउ दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ रेडी टू मूव ऑन टू द फोटो सिस्टम 1। लेकिन इनको फोटो सिस्टम 1 पे पहुंचने की जरूरत क्यों पड़ी है? डियर स्टूडेंट्स, यहां पर भी सूरज की रोशनी पड़ रही है, लाइट पड़ रही है यहां पर भी। ठीक है, यहाँ पर भी दो फोटॉन्स को हम लेकर के चलेंगे। तो यहाँ की भी जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल है वो एक्टिवेट हुई, उसका एनर्जी लेवल्स बूस्ट अप हुआ, उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? दे विल गेन द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, और एनर्जी लेवल जैसे हाई होगा तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। कहाँ से? फ्रॉम द फोटो सिस्टम 1, इसकी रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल से। जैसे यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकले तो मतलब यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो गए। तो याद रखिएगा, ये जो फोटो सिस्टम 2 से दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे थ्रू प्लास्टोसाइरिन, ये दो इलेक्ट्रॉन्स ये इस इलेक्ट्रॉन होल को फिलअप करेंगे। वहाँ पर वाटर को स्प्लिट करके दो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकालेंगे ताकि ये दो इलेक्ट्रॉन होल पूरे किए जा सकें। यहाँ से जो फोटो सिस्टम 2 से जो उसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, दिस होल इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स डाउन द ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं, नीचे हाई लेवल से लो लेवल की तरफ आ रहे हैं, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स ये इन इस दो इलेक्ट्रॉन होल को, गैप को जो फोटो सिस्टम 1 का क्रिएट हुआ था वो उसको पूरा करेंगे। अब इसके जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फोटो सिस्टम 2 के, फोटो सिस्टम 1 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर इसको एक्सेप्ट करेगा और इन दो इलेक्ट्रॉन्स को पास करेगा एक और the nearby another electron transport chain. This one is another electron transport chain. So उसका पहला member है that is ferredoxin. This is ferredoxin. It is an iron, मतलब Fe containing protein. Clear? It is an iron containing protein. मतलब कि इसका आयरन जो है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर काम करेगा इस प्रोटीन का। क्लियर? और फिर उसके बाद ये दो इलेक्ट्रॉन्स आगे पास किए जाएंगे टू द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द NADP रिडक्टेज। रिडक्टेज मीन्स इट इज एन एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? दे आर द प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स ये एक्सेप्ट करेगा और अब ये क्या करेगा? NADP जो यहां पर मौजूद है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, NADP जो कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से आए उनको पास किया जाएगा। याद रखिएगा, दो इलेक्ट्रॉन्स को, ये इंपॉर्टेंट MCQ है, दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा NADP जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में था, और वो जो हाइड्रोजन यहां पर बने थे, ये वाले हाइड्रोजन आयंस, इन हाइड्रोजन आयंस को, आयन कैसे बना था? जी शाबाश, आयन कैसे बना था? जब ये एटम था ना पहले हाइड्रोजन, आयन कैसे बना था? जब जब इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए। अब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एंड इट विल बिकम द एटम अगेन, एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू NADPH, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, विच इज रिड्यूस्ड। ये ऑक्सीडाइज्ड और ये रिड्यूस्ड है। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको रिड्यूस करने के लिए। क्लियर? तो यहां पर इसकी रिड्यूसिंग, ये नाउ इट हैज गॉट द हाइड्रोजन, इट है, इसके पास रिड्यूसिंग पावर आ चुकी है। दिस वेरी रिड्यूसिंग पावर विल बी यूज्ड इन द
Calvin cycle during the light independent reactions, during the C3 pathway, or during the dark reactions to reduce carbon dioxide into sugars. Clear? तो पहले तो बात ये होगी. तो यहाँ पर देखिए कहाँ से कहानी ऐसे ये जिग-जैग फैशन में मूव कर रही है. तो इसका जिग-जैग कॉन्सेप्ट ये ट्रांसपोर्ट की बिना के ऊपर इसको कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज जी स्कीम. तो जी स्कीम इट्स ड्यू टू इट्स जिग-जैग कॉन्सेप्ट. मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट जिग-जैग, ठीक है, जिग-जैग मूवमेंट. तो मुझसे बच्चे कहते हैं सर ये तो देखने में तो एन लग रहा है, सो इसको एन स्कीम क्यों नहीं कहा गया? सो दैट इज नॉट ड्यू टू इट्स शेप, ड्यू टू इट्स जिग-जैग फैशन. ठीक है, ये जिग-जैग फैशन में जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ जी स्कीम एज वेल. क्लियर? सो दैट इज द नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन. अब डियर स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब एटीपी का लेवल थोड़ा कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि अगला स्टेप जो है फोटोसिंथेसिस का जो दूसरा स्टेप है, दैट इज द डार्क रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, उसको रन करने के लिए एटीपी कम पड़ गई. ठीक है, एटीपी कम पड़ गई. तो उस सिचुएशन में फिर क्या होगा कि जो कैल्विन साइकिल है नहीं चलेगा, C3 पाथवे नहीं चलेगा, डार्क रिएक्शन नहीं चलेगा, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन नहीं चलेगा. तो फिर क्या होगा? अब जिस चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है उसको पहले पूरा किया जाएगा, पहले पेट्रोल पूरा किया जाएगा, फिर गाड़ी चलेगी. तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, लिसन. तो यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 जो आगे ये पास करा था फेरिडॉक्सिन को, उसे फेरिडॉक्सिन को ही पास करने हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स. हियर इज द फेरिडॉक्सिन. अब फेरिडॉक्सिन बजाय इसको कि NADP रिडक्टेज को वो 2 इलेक्ट्रॉन दे और वो अल्टीमेटली NADP बनाए, जिसकी भी फिलहाल जरूरत नहीं है, मतलब जिसकी इनफ अमाउंट मौजूद है, लेकिन शॉर्ट क्या चीज हो रही है, ATP शॉर्ट हो रही है. तो बजाय इसके कि ये फेरिडॉक्सिन, ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स NADP रिडक्टेज को दे, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको शिफ्ट कर देगा? टू द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स. इट विल शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन्स टू द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, टू द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स. तो इसके अब ये इलेक्ट्रॉन्स मैं अलग से शो कर रहा हूँ. ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके, इसने आगे पास किए. अब वो कहाँ पर पहुँचे? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास. साइटोक्रोम प्रोटॉन पंप के तौर पर काम कर रहा है, और प्रोटॉन पंप क्या करता है? इट इज इन्वॉल्व्ड इन द केमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ ATP. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको गए? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को. साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ने उनको यूटिलाइज किया एज अ प्रोटॉन पंप, और प्रोटॉन पंप के तौर पर भी काम किया. हाइड्रोजन इसको अंदर स्ट्रोमा से उठाकर अंदर थैलाकॉइड में फेंका. वहाँ पे हाइड्रोजन इसका ग्रेडियंट बनना शुरू हुआ, वो कि हम केमियोस्मोसिस में पढ़ेंगे. ठीक है, तो इस तरह से फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, यहाँ से फिर वापस यहाँ से. तो यूं इस तरह से क्या होगा, एक साइक्लिक फैशन में. ये देखिएगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने फेरिडॉक्सिन को दिए, फेरिडॉक्सिन ने साइटोक्रोम को दिया, साइटोक्रोम ने प्लास्टोसाइनिन को दिया, प्लास्टोसाइनिन ने दोबारा से फोटोसिस्टम 1 को दिए, फोटोसिस्टम 1 से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, फिर उसने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दिया, वो यहाँ से फिर वापस कहाँ पे हो गए? टू द फेरिडॉक्सिन. फिर फेरिडॉक्सिन ने क्या किया? फिर उसको दे दिया साइटोक्रोम, बजाय इसके कि वो NADP को देता. क्यों? क्योंकि ATP की शॉर्टेज है. ATP पूरी नहीं है. ATP पूरी होगी तो अगला साइकिल, अगला फेज चलेगा, तो तभी कुछ फायदा फोटोसिंथेसिस का हो सकता है, अदरवाइज नहीं. तो इस तरह से इस फैशन में जो अल्टीमेटली इसका प्रोडक्ट क्या है आप देख सकते हैं. इस तरह से करने से बन क्या रहा है? द ATP इज सिंथेसाइज्ड. क्या बन रहा है? ATP. तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ATP बनना, दैट इज कॉल्ड एज साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन. दैट इज साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन. इज दैट क्लियर? सो हमने बात की थी नॉन साइक्लिक और, लेकिन आम हालात में कौन सी चलती है? नॉन साइक्लिक. साइक्लिक कब चलनी है? व्हेन देयर इज द स्ट्रेस ऑफ ATP, मींस द ATP इज डाउन. ATP इज डाउन. क्लियर? तो इसमें हम एक और चीज भी इनके डिफरेंसेस में लिख सकते हैं, जहां पर हमने लिखा कि इसमें 2 फोटो सिस्टम है, इसमें 1 फोटो सिस्टम है, इसमें फोटो सिस्टम 1 है, इसमें फोटो सिस्टम 2 and 1 है. ये प्रीडोमिनेंट है, ये ATP की स्ट्रेस में होगी. इसके अलावा हम इनके प्रोडक्ट्स को भी कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, मतलब कि डिफरेंसेस में लिख सकते हैं. किस तरह से कि नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं?
इसमें ATP बन रहा है प्लस NADPH बन रहा है। क्लियर? जबकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ ATP ही सिंथेसाइज हो रही है, यहां पर ATP सिंथेसिस हो रही है सिर्फ। क्लियर? सो इसके प्रोडक्ट्स, तो यहां पर दो प्रोडक्ट्स हैं। क्लियर? सो दिस आर द सम डिफरेंसेस बिटवीन द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। ये भी आपने MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर लेने हैं। क्लियर? इसमें सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम, कौन सा? वन, ओनली वन। क्लियर? सो NADP को उसको क्यों नहीं पास किए जा रहे? क्योंकि वो एनफ अमाउंट बन चुकी है। तो तब ये चलता है, तब ये चलतेगा ड्यूरिंग स्ट्रेस ऑफ ATP, ड्यूरिंग द शॉर्टेज ऑफ ATP, द साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन रन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, लाइट रिएक्शंस यानी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जिसको हम जी स्कीम कह रहे हैं, इसका मकसद क्या था? तो हमने इसकी समरी पहले पढ़ी थी कि लाइट रिएक्शंस का मकसद है कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाए इनटू केमिकल एनर्जी, ATP एंड NADPH। क्लियर? तो यहां पर ATP भी बन चुकी है। ठीक है, ATP की इस्तेमाल होगी एसिमिलेटिंग पावर, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाएगी और मुख्तलिफ कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करवाएगी। और दूसरा जो हमारा रिक्वायर्ड हाई एनर्जी कंपाउंड था, दैट वाज NADPH, इसकी रिड्यूसिंग पावर विल बी यूज्ड। क्लियर? सो ये दोनों हमारे मकसद जो थे लाइट रिएक्शन में, कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाए इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ NADPH एंड ATP, वो हो चुका। जी तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली टुडेज लेक्चर हैज बीन क्लियर, और होपफुली देयर इज no question, and if there is any question related to today's lecture, you can put your question in the comments box and our subject specialist will answer you soon. So take care of yourself until next lecture. Allah Hafiz.